हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रावणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लॉकडाउन में हमें बहुत सी बातें पता चल रही हैं जो पहले भी होती थी, पर अपने बिजी लाइफ के चलते हमने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी सच्चाई भी सामने आती हैं। आज मैं ऐसी ही एक सच्चाई के बारे में बात करने वाली हूँ और वो है फेक एलिगेशंस ऑन बॉयज़। हम में से बहुत लोगों को ये पता होगा या हमने सोशल मीडिया में शॉर्ट मूवीज़ भी देखी होंगी कि कैसे कुछ गर्ल्स अपने पावर का, अपने राइट्स का गलत फ़ायदा उठाती हैं और इनोसेंट बॉयज़ के ऊपर फेक एलिगेशंस लगाती हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब एक वीडियो क्लिप देखें जो मैंने नीजो जॉनसन के इंस्टाग्राम पेज से लिया है। और आपको अगर ये पूरा वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप नीजो जॉनसन द स्टोरी टेलर के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें या नीजो जॉनसन के इंस्टाग्राम पेज पे भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। What the hell? Ma'am, I'm really sorry, ma'am. There was a brick on the road I couldn't control, ma'am. I'm really sorry. Are you stupid? If you don't know how to drive, then why the hell are you driving? Ma'am, I couldn't control, ma'am. It's a dent, ma'am. We can get it fixed. Listen, I don't have time for your nonsense. Change the entire door. But, ma'am, I can get it fixed, ma'am. You can come with me. Ma'am, it's a small dent. No. I don't know anything. You change the entire door. Ma'am, I could have easily run away, ma'am. I'm still here. You can call the police if you want. You're trying to be over smart? Huh? Wait. I'll tell you what is being over smart. You're gonna regret this, huh? But, ma'am... No. I'll ruin your life. Wait. But, ma'am, we can... Ma'am, we can get it fixed, ma'am. Ma'am, it's a dent, ma'am. Please. Hello? Where the hell are you? I'm calling you since morning. I was in the gym. Why? What happened? Your picture is all over the internet. Some girl has written some post on social media and she's saying that you have molested her in the parking lot. Molested? Bro, it was a minor accident and she was asking me to change a whole door. Are you sure you're not lying? Of course not. And first of all, tell me one thing. If I had to do anything of that sort, why would I do it in the daylight? And that too in a busy road. Yeah, okay. But this thing is taking a really bad shape. I'll send it to you. It has gone viral. Yeah, okay. He hit my car and I got down to see the damage, and he started touching me inappropriately and he tried to molest me. I was scared, so I ran away from there. Hi. This is my final reply to all of those who are trolling me without knowing the facts. I know women go through a lot of exploitation, but that doesn't mean it is done by a male person. In general, it's a bad person, that's all. I'd request you all to stop judging men so quickly. Well, my life was spoiled and it was done by a bad person. So I've decided that I'll take my life today. That's all. We always talk about girls कि हमेशा उनके साथ ही बुरा होता है। ये सच है, लेकिन
हर लड़की के साथ बुरा नहीं होता। कुछ लड़कियों के वजह से भी कुछ लड़कों की, कुछ इनोसेंट लड़कों की लाइफ भी ख़राब होती है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। सब कुछ अच्छा या सब कुछ बुरा नहीं होता, लोग अच्छे भी हैं और लोग बुरे भी हैं। वैसे ही अगर कुछ लड़के बुरे हैं तो कुछ लड़कियां भी बुरी हैं। सो वी कैन नेवर ब्लेम ईच एंड एवरी बॉय और ईच एंड एवरी गर्ल। लेट्स कम टू द पॉइंट। देयर आर गुड बॉयज़ जो लड़कियों की ही नहीं, हर इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। दे नो हाउ टू ट्रीट पीपल, बट दीज आर द बॉयज़ who because of their innocency, because of their good manners, good behavior, have to suffer. So should we blame their parents for providing them good manners? हमारी सोसाइटी सोचती है कि boys don't cry, they can't cry, they have to be strong all the time, they don't feel pain. But यार, लड़के हैं तो क्या हुआ, इंसान है, they have feelings. डू यू थिंक इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है? नो, डिस्क्रिमिनेशन या इनजस्टिस इंसानों के साथ होता है। एंड बॉयज़ आर टू ह्यूमन बींग्स। पता है, ये बोलते बोलते, ये सुनाते सुनाते कि बॉयज़ डोंट क्राई, दे कांट क्राई, दे हैव टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल द टाइम, दे डोंट फील पेन। नाउ बॉयज़ डोंट इवन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे डोंट शेयर थिंग्स. They suffer alone. They become so lonely, so frustrated, they find no way coming out of it and they commit suicide. Fake allegations के वजह से लड़कों की लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है. They become mentally disturbed. They become lonely, they become frustrated. क्योंकि सोसाइटी उन्हें और नहीं अपनाती. उन्हें उनके वर्क प्लेसेस से निकाल दिया जाता है, उनके ही फ्रेंड्स उन पर ट्रस्ट नहीं करते, एंड देन दे डोंट लीड अ नॉर्मल लाइफ. इन सब की वजह से उन्हें लगता है कि देयर इज़ नो वे कमिंग आउट ऑफ इट, एंड अगर वो किसी को जाके सच भी बताएंगे तो उनका कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई उन पर बिलीव नहीं करेगा, और इस वजह से उन्हें लगता है कि लास्ट ऑप्शन इज़ सुइसाइड. फेक एलिगेशंस की वजह से मैनी पेरेंट्स हैव लॉस्ट देयर सन्स एंड दिस इज़ एन सीरियस इशू. जब किसी को एक ऐसे क्राइम के लिए, ऐसे काम के लिए पनिश किया जाता है जो कभी उसने किया ही नहीं, तब वो मेंटली कितना डिस्टर्ब्ड होता है, कितना लोनली फील करता है, कितना हेल्पलेस फील करता है, वी कैंट इवन इमेजिन. फेक एलिगेशंस के हमने शायद बहुत सारे केसेस सुने होंगे, लेकिन आज तक ये सुनने में नहीं आया कि एक लड़के को जो फेक एलिगेशन में फंसा हुआ था उसे जस्टिस मिला हो. गवर्नमेंट ने गर्ल्स को इतनी ज़्यादा पावर, इतने ज़्यादा राइट्स दे रखे हैं कि कुछ लड़कियां उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं. अगर एक लड़की के साथ बुरा हो रहा हो या ना हो रहा हो, अगर वो झूठ भी बोल रही हो तभी पता नहीं चलता. वो झूठ बोल के भी पुलिस को बुलवा सकती है, उसके पास इतना ज़्यादा पावर है. पर अगर एक लड़का पुलिस को बुलाना चाहे और ये बोले कि एक लड़की मुझ पर फेक एलिगेशन लगा रही है जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो क्या कोई उसका बिलीव करेगा? नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो एक लड़का है. यही होता है, अगर एक लड़का सच बोल रहा हो तभी उसका कोई विश्वास नहीं करता, और अगर एक लड़की झूठ भी बोल रही हो तभी हर कोई उसी का साइड लेता है. और इसी चीज़ को हमें चेंज करना है. हर बार लड़के ही गलत हो ज़रूरी तो नहीं. अगर किसी लड़की के साथ कुछ बुरा होता है तो हम हाई कोर्ट से लेकर कैंडल मार्चेस तक पे निकल जाते हैं, पर अगर एक लड़का हो तो हम सिर्फ RIP ब्रो लिखकर ख़त्म कर देते हैं. ये इनइक्वलिटी क्यों? ये डिफरेंस क्यों? जस्टिस तो हर एक इंसान को चाहिए होता है ना, जिसके साथ गलत हुआ हो, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का. हम तो सिर्फ RIP ब्रो लिखकर भूल जाते हैं, पर खोया तो लड़के के माँ बाप ने अपना बेटा होता है. वो भी शायद जस्टिस की मांग इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सोसाइटी ये बोलेगी कि वो तो लड़का था, ज़रूर गलती उसकी ही होगी. मैं अपने मम्मी से हमेशा से एक ही बात बोलती हूँ कि मुझे एक ऐसे वर्ल्ड में रहना है जहाँ कुछ बुरा, कुछ गलत हो ही ना, जहाँ सब इक्वल हो, सब हैप्पी हो. बट नाउ आई थिंक
दैट्स ओनली माई फैंटेसी। बात इक्वलिटी की होनी चाहिए। जैसे लड़कियों को कुछ पावर्स और राइट्स दिए गए हैं, वैसे ही लड़कों को भी कुछ राइट्स, कुछ ऐसे पावर दिए जाने चाहिए जिससे कि अगर वो सही हो तो खुद को सही साबित कर सके। उन्हें एक चांस तो मिलना ही चाहिए खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का। बिकॉज बॉयज़ डू हैव फीलिंग्स, दे डू फील पेन। वो इंसान हैं, अगर उनके साथ गलत होता है तो उन्हें भी जस्टिस पाने की चाहत होती है। हम बिना पूरे फैक्ट्स को जाने ही कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं जो सही नहीं है, और इसी चीज़ को बदलना है। सो स्टॉप ब्लेमिंग ऑल द बॉयज़ एवरी टाइम, बिकॉज नॉट ऑल द बॉयज़ आर सेम। समटाइम्स बी अ गुड लिसनर फॉर द बॉयज़। जय हिंद। हाय गाइज़, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।